بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ بہت پرانی ہے، جب دنیا میں لوگ سوشل میڈیا نام کی کسی چیز سے واقف نہیں تھے۔ وہ مختلف ایپ سے کئی سالوں کی دوری پر پرسکون اور سادہ زندگی گزارتے۔ خوشی کے موقعوں پر گھر میں ناچنے کے لیے مخصوص لوگوں کو بلایا جاتا، جنہیں عام طور پر لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، مگر شادی، بیاہ، بچے کی پیدائش جیسے خوشی کے موقعوں پر انہیں خوب اہمیت دی جاتی، اور یہی مخصوص لوگ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن کر انہیں انٹرٹین کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک سلمیٰ تھی۔ وہ اپنے زمانے کی مشہور مراسن تھی۔ یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا اور ماضی میں اس کے ماں باپ بھی اسی پیشے سے وابستہ رہ چکے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ جب اس نے جوانی میں قدم رکھا تو ماں سے گانا سیکھنا شروع کر دیا۔ ایک روز وہ اپنی ماں کے ساتھ شہر کے امیر ترین شخص شاہ نواز کے گھر ان کے پوتے کی پیدائش پر گانے کی محفل سجانے اور رونق لگانے کے لیے لے گئی تو سلمیٰ بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ ماں سے گائیکی کے نشیب و فراز سیکھ رہی تھی، ان دنوں ہر جگہ پر اپنی ماں کے ساتھ ہی پائی جاتی۔ اس کی ماں جو اس علاقے میں اپنی آواز کے جادو اور گداز لہجے کی وجہ سے کئی دلوں کی دھڑکن تھی، اس وقت اپنی آواز کا جادو بکھیر رہی تھی۔ سلمیٰ ماں کے چہرے پر نظریں جمائے سر کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، جب ایک خوبرو نوجوان حسنین کی نظر سلمیٰ پر پڑی اور اسے دیکھ کر گویا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کوئی چہرہ اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کے حسن سے اپنی نظروں کی پیاس بجھاتا رہا۔ سلمیٰ کے چہرے پر پہلی معصومیت اور بھولا پن اس کے دل کا سکون لوٹنے کے لیے کافی تھا۔ وہ شاہ نواز کا چھوٹا بھائی تھا اور گاؤں سے بھتیجے کی پیدائش پر شہر آیا تھا۔ رات کو سجائے رونق میلہ اسے بہت زیادہ لطف دے رہا تھا کہ رہی سہی کسر اس پری چہرے نے پوری کر دی۔ محفل ختم ہونے تک وہ اسی پر نظریں جمائے بیٹھا رہا اور وہ پری وش اس کی لگن سے بے خبر ماں سے گائیکی سیکھنے میں گم تھی۔ اگلے روز اس نے اس کی ساری نشانیاں بھابھی کے سامنے رکھ کر اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو صفیہ بیچاری کو دیور کا باولا پن سمجھ میں ہی نہیں آیا، اور نہ ہی مطلوبہ لڑکی کا معلوم ہوا کہ وہ کون ہے جس نے دیور صاحب کے دل کا سکون لوٹ لیا ہے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں اس کا سکون بھی لٹنے کے قریب ہے۔ وہ تو بھلا و کام والی رضیہ کی بیٹی فریحہ کا جو صفیہ کی خاص جاسوس تھی اور 100% درست خبریں اس تک پہنچاتی۔ صفیہ کو اپنی اس خبری کی ہر خبر پر پورا اعتبار ہوتا۔ فریحہ بھی چن چن کر پورے محلے کی خبریں لاتی۔ ہر خبر کے بعد صفیہ اس کی مٹھی گرم کرتی تھی۔ یہی اس کی بہترین سروس کی وجہ تھی۔ اس کی ماں بھی پیسوں کے لالچ میں اسے روکتی نہیں تھی۔ خیر، اس نے جب صفیہ کو آ کر بتایا کہ رات چھوٹے صاحب میراسن سکینہ کی بیٹی سلمیٰ پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، پہلے تو اسے فریحہ کی بات پر یقین ہی نہیں آیا، مگر جب رضیہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی تو صفیہ دل تھام کر رہ گئی اور پہلی ہی فرصت میں دیور کو اڑے ہاتھوں لیا، جو دل ہارا بھی تھا تو ایک میراسن کی بیٹی پر۔ اگلے روز شاہ نواز اور صفیہ نے بیٹھ کر حسنین کو خوب سمجھایا کہ سلمیٰ کا خیال اپنے دل سے نکال دے، مگر وہ کسی طور نہیں مانا اور سلمیٰ سے نکاح کروانے کی ضد کرنے لگا۔ تنگ آ کر شاہ نواز کو سخت لہجہ اپنانا پڑا۔ یہ شہر ہے، لوگ اتنا ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے، مگر تھو تھو بھی پھر کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے باتیں بناتے ہیں، اور گاؤں کا حال تو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، لوگ ذات برادری کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا سالوں سے اونچی ذات برادری دیکھ کر رشتہ کرتے آئے، اب تم ہمارے بزرگوں کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتے ہو کیا؟ ایسی بھی کیا مصیبت آ گئی ہے کہ ایک میراسن کی بیٹی سے رشتہ ہونے کے خواب دیکھنے لگے ہو؟ بڑے بھائی کے صاف انکار کے بعد حسنین بہت زیادہ پریشان ہو گیا، مگر اس نے ہار نہیں مانی اور آخری بار اپنے بھائی سے منت بھرے انداز میں کہا، میں اسے یہاں سے دور لے جاؤں گا بھائی، بھول جائے گی وہ اپنی حقیقت، میں اسے نئی پہچان دوں گا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا، مگر جواب میں شاہ نواز نے ایک طنز بھرا کہکا لگایا اور بولا، تم مٹاؤ گے سالوں پرانی اس کی شناخت کہ وہ نسلی میراسن ہے یا کہ اس کے خون میں ناچ گانا شامل ہے؟
कभी नाखून से मांस भी जुदा हुआ है क्या? शाहनवाज ने भाई का मजाक उड़ाया कि शायद इस तरह वो अपनी जिद से पीछे हट जाए, मगर वो अपनी जिद का पक्का निकला और अगले ही दिन गांव जाने के लिए ट्रेन में बैठ गया। घर पहुंचकर उसने अपने ख्यालात का इजहार दादा से किया तो वो भी हत्थे से उखड़ गए। खबरदार, अगर किसी बदनस्ल को इस खानदान की बहू बनाने के ख्वाब देखे तो तुम्हारी आंखें ही नोच लूंगा। दादा की वार्निंग का रत्ती बराबर भी हसनैन पर असर नहीं हुआ और वो तेज लहजे में बोला, ठीक है, मैं भी आपका पोता हूँ। जब तक मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी मैं अनाज का एक दाना तक खुद पर हराम समझूंगा। अगर आप चाहते कि मैं कुछ खाकर जिंदा रह सकूं तो कल शहर जाकर सलमा की माँ से उसके रिश्ते की बात कर लेना। वो अपनी बात पूरी करके रुका नहीं था और तेजी से वहां से चला गया। लड़का तो अतावला हो गया है। मैं तो कहती हूँ हमें जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। पास बैठी दादी जो सारी बात सुन चुकी थी दादा से सरगोशी भरे अंदाज में बोली तो दादा उनका प्लान सुनने लगे और आखिर में उस प्लान पर अपनी बीवी की अक्लमंदी की दाद देने लगे। दादा जान ने जब अपनी रजामंदी का इजहार किया तो हसनैन उनकी चालबाजी से बेखबर खुश हो गया और दादा जान को गले लगा लिया। दादा अपनी मुनाफिकत पर दिल ही दिल में शर्मिंदा ज़रूर थे, मगर इतने ज़्यादा नहीं कि उसके रिश्ते के लिए राज़ी हो जाते। सो उन्होंने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। शहर पहुंचे तो शाहनवाज को तो यकीन ही नहीं आया कि दादा इतना बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। हसनैन की उस कम उम्री और नादानी की उम्र में की गई मोहब्बत दादा की नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती थी। ये बात वो अच्छी तरह से जानता था, तभी दादा का इस कदम पर हैरत ज़दा था। फिर ये हैरत भी उसकी जल्द ही दूर हो गई थी। जब रात को हसनैन के सोने के बाद दादा ने उसे अपने पास बुलाकर सारा मामला उसे समझा दिया और साथ ही उसे ये भी समझा दिया कि इस ड्रामे में अपना किरदार किस तरह से निभाना है। वो पूरी बात समझकर उस रात मुतमईन होकर सो गया। अगले दिन सुबह के वक्त जब सलमा की माँ जल्दी जागकर किसी बुलावे का इंतज़ार कर रही थी, ऐसा बहुत कम होता कि उसे किसी दिन बुलावे का इंतज़ार करना पड़ता। अक्सर लोग पहले से ही बुकिंग करवा कर रखते थे। सो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा तो उसने कलमा शुक्र अदा किया और उठ खड़ी हुई कि रिज़्क़ का पैगाम आ गया था और अब उसे घर में लेकर आना उसका काम था। उन्हीं सोचों में गुम उसने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने शाहनवाज को देखकर हैरान रह गई। साईं, अभी तो आपके बेटे की खुशी मनाई है, लेकिन अब किस वजह से बुलाने के लिए तशरीफ़ लाई हैं? तारा उसे मेहमान खाने में बिठाने के लिए अंदर का रास्ता देते हुए बोली तो शाहनवाज बोला, पूरी बात तो सुन ले तारा, क्यों इतनी अतावली हो रही है? तारा को तजस्सुस हुआ और बेध्यानी में दरवाज़ा खुला छोड़कर शाहनवाज को लिए अंदर दाखिल हो गई। बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ तारा, मेरी बात गौर से सुनना और याद रखना कि ज़िंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ज़िंदगी किस्मत बदलने का मौका भी किस्मत वालों को ही देती है, वो बार बार नहीं देती। क्या पहेलियाँ बुझवा रहे हो? शाह साहब, जो कहना है साफ साफ कहो। तारा बेचैनी से बोली तो शाहनवाज ने बोलना शुरू कर दिया। उस दिन छोटे की खुशी वाले दिन मेरे छोटे भाई हसनैन का दिल तुम्हारी सलमा पर आ गया था। तुम्हें तो मालूम ही है कि हम जागीरदार लोग रिश्ते नाते हसब नसब देख कर करते हैं, वरना लोगों में हमारी नाक कट जाती है और हमारे मज़ारे ऐन हमारे सर पर चढ़कर अपनी मनमानियाँ शुरू कर देते हैं। इसलिए ये रिश्ता तो हम किसी सूरत नहीं कर सकते, मगर हसनैन का दिल रखने के लिए हम आज रिश्ता लेकर आएंगे तो तुमने साफ इनकार कर देना। अब ये बताओ कि उस इनकार की क्या कीमत वसूल करोगी? बस काम ऐसे हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दूसरी तरफ हसनैन बहुत परेशान था। दादा को गांव से शहर तो ले आया, मगर साथ ही दिल में ये खौफ भी था कि अगर तारा ने बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो वो क्या करेगा। सलमा के खोने का एहसास जानलेवा था। पूरी रात जागते और दुआ करते गुजर गई कि किसी तरह उसे सलमा का साथ मिल जाए, चाहे जान पर खेल कर ही क्यों न मिले। इंसान की यही भूल होती है कि अपनी ख्वाहिश में अंधा होकर दुआ के आदाब भी भूल जाता है। सो उस वक्त भी उसका यही ख्याल था कि वो रात के आखिरी पहर कुछ सोच कर मुतमईन होता सोने में कामयाब हो गया।
मगर सुबह जब जल्दी से बेदार होकर वो तारा के घर पहुंचकर हर कीमत पर रिश्ता कबूल करवाने के लिए उसके घर पहुंच गया था और दरवाज़ा खुला पाकर अंदर कदम रख दिया। बाएं जानिब बने कमरे में खुली खिड़की से अंदर का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। वो दुश्मन जान उसके दिल का चैन लूट कर दुनिया माफिया से बेखबर सो रही थी। उसके चेहरे पर फैली रेशमी स्याह बालू की लटें उसकी दिलकशी में मज़ीद इजाफा कर रही थी। उसकी सुनहरी रंगत और दिलकश नकूश उसके दिल को बेचैन कर रहे थे। इससे पहले कि वो मज़ीद खोया रहता, उसे कुछ अजीब होने का एहसास हुआ। मेहमान खाने से आती शाहनवाज भाई की आवाज़ सुनकर वो हैरान रह गया। उस दिन छोटे की खुशी वाले दिन मेरे छोटे भाई हसनैन का दिल तुम्हारी सलमा पर आ गया था। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि हम जागीरदार लोग रिश्ते नाते हसब नसब देख कर करते हैं, वरना लोगों में हमारी नाक कट जाती है। हमारे मज़ारे ऐन सर पर चढ़कर मनमानी शुरू कर देते हैं। इसलिए ये रिश्ता किसी सूरत नहीं कर सकते, मगर हसनैन का दिल रखने के लिए आज हम रिश्ता लेकर आएंगे तो तुमने साफ इनकार कर देना। अब ये बताओ कि इस इनकार की क्या कीमत वसूल करोगी? बस काम ऐसे हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसने एक एक लफ्ज़ बड़े गौर से सुना। उसकी अपनी उसकी खुशियाँ दुनियावी नमूदो नुमाइश की खातिर बर्बाद करने के लिए सत्य गिर सकते हैं। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो जो अपनी खुशियों का सौदा करने के लिए वहाँ आया था, वो नहीं जानता था कि उससे बड़ा सौदागर पहले से वहाँ मौजूद है। वो बड़े बड़े कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ तो उसे देखकर शाहनवाज के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं रिश्ते के मामला तय करने आया था तारा के साथ। तारा बताओ ना हसनैन को। वो उसे बरहम देखकर बहाने बनाने लगा, मगर हसनैन के चेहरे से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो सब सुन चुका है। सो तारा ने खामोश रहने में याफियत जानी और तमाशाई बनी खड़ी रही, जबकि हसनैन शोला बरसाती निगाहों से बड़े भाई को देख रहा था। आप लोग मेरी खुशियों के इतने बड़े दुश्मन हैं, ये मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, मैं नहीं करता ये शादी। आप लोग भी आज रात ही मुझे कंधा देने और दफन करने की तैयारी कर लें। ये कहकर वो रुका नहीं और तेज़ी से जिस तरह आंधी तूफान से अंदर दाखिल हुआ था उसी तरह वापस चला गया। शाहनवाज को ऐसी सूरत हाल का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। सो उठकर भाई के पीछे दौड़ पड़ा, मगर वो उससे पहले घर पहुंचकर कमरे में बंद हो चुका था। शाहनवाज ने दादा को पूरी बात बताई तो वो सर पकड़ कर बैठ गए। हसनैन के कमरे का दरवाज़ा खूब पीटा गया और अपनी गलती का एहसास होने पर दादा और शाहनवाज ने एतराफ़ भी किया, मगर शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। हसनैन नींद की गोलियां फांक कर अंदर बेहोश पड़ा था। बाहर सब लोगों का दिल सख्त बेचैन था। दादी बार बार दरवाजे पर दम कर रही थी और हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी कि हसनैन कोई बड़ा नुकसान न करे, क्योंकि वो अपने खून की ज़िद्दी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। आखिरकार 2-3 घंटे के बाद दरवाज़ा तोड़कर हसनैन को उठाया गया, जिसके मुंह से झाग निकल रहे थे। उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। दवा का कुछ ही हिस्सा मैदे से जिस्म में दाखिल हुआ था, सो बचत हो गई थी और इसका मादा वाश करके बचा लिया गया था। रात के वक्त जब उसे घर ले जाया गया तो वो सब उसकी ज़िंदगी बच जाने पर शुक्रगुजार थे। दादा और दादी ने मज़ीद देर करना मुनासिब नहीं समझा। कुछ वो दिन की रोशनी में ये काम करना शायद बाइसे शर्म महसूस करते। सो उन्होंने रात के अंधेरे में कांपते हाथों और झुके सर से तारा के घर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। आखिर परदेश में बैठे बैठे यानी हसनैन के बाप को भी मुंह दिखाना था। जो बेटा खो देता तो माँ बाप से ज़रूर सवाल करता। तारा सुबह वाले वाक़े के बाद नॉर्मल हो चुकी थी, क्योंकि इस पेशे में छोटे मोटे आशिकों से पाला पड़ ही जाता था। ये उसके लिए नई बात नहीं थी। रात के उस पहर दरवाज़ा बजा तो वो यही समझी कि अर्जेंट उसे बुलाने के लिए कोई आया है। ऐसे मौके पर उसकी कमाई दुगनी हो जाती। सो वो खुश हुई और दरवाज़ा खोला तो 2 बूढ़ों को रोते देखकर हैरान रह गई। वो यही समझी कि वो रास्ता भूलकर उसके दरवाजे पर आ गए। यहाँ पर लोग खुशी के मौके पर आते हैं, रोने और गम बांटने नहीं। वो गुस्से से बोली, हम यहाँ तेरे दरवाजे पर अपने पोते की खुशियों की भीख मांगने आए हैं। हम शाहनवाज के दादा दादी हसनैन के लिए सलमा का हाथ मांगने आए हैं। हमारी झोली को खाली मत लौटाना।
चाहे इस रिश्ते के लिए कोई भी कीमत रख ले। दादी ने सिसकियों के दरमियान कहा तो तारा को तो यकीन ही नहीं आया कि कोई इस चाह से भी उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है। शाहनवाज इस शहर का अमीर तरीन आदमी था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये रिश्ता किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। सो उन दोनों को अंदर बुलाकर इज्जत से बिठाया और बोली, कोई माँ अपनी बेटी की खुशियों का सौदा कैसे कर सकती है? मेरे लिए इतना काफ़ी है कि कोई इतनी चाह और मान से उसका हाथ मांगने के लिए इस दरवाजे पर आया है, जिस पर सालों से लोग अपने दिल को बहलाने के लिए दस्तक देते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही दुआ मांगी है कि इस दरवाजे पर सलमा के लिए कोई दस्तक दे तो उसका हाथ मांगने के लिए दे, ना कि घर में कुछ देर की रौनक लगाने के लिए। आज मेरी ये दुआ कबूल हो गई है। तारा बेहद जज्बाती अंदाज में बोल रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हसनैन की दादी कुलसूम ने उसे गले से लगा लिया और इस तरह जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, ये रिश्ता तय हो गया। वो दोनों वहाँ से बड़े खुश और मुतमईन वापस आ गए थे और तारा ने तो जैसे उसी वक्त कलमा शुक्र अदा किया कि बेटी के लिए उम्मीद से बढ़कर अच्छा रिश्ता मिल गया था। खुशी उसके चेहरे से जाहिर थी। अगले हफ्ते जब हसनैन की तबीयत कुछ संभली तो अगले ही दिन तारा के दरवाजे पर एक छोटी सी बारात उतरी और सलमा हसनैन की दुल्हन बनकर रोती आंखों के साथ रुखसत हो गई। हसनैन के लिए वो उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। अगले दिन वो लोग गांव जाने के लिए निकल गए। सलमा जो माँ के बगैर एक दिन भी कहीं नहीं गुजारती थी, अब माँ को रोता छोड़कर बहुत दूर जगह पर चली आई थी। माँ ने उससे वादा लिया था कि वो हर माह खत लिखकर उसे अपनी खैरियत से आगाह करे और जिस माह उसका खत नहीं मिलेगा उसकी माँ समझ जाएगी कि वो किसी परेशानी में मुब्तला है। हसनैन की मोहब्बत और तवज्जो ने उसे उस नए माहौल में एडजस्ट कर ही दिया था। घर के बाकी लोगों का रवैया उसके साथ लिया दिया सही था। एक रोज़ वो सुबह सोकर उठी तो दिन काफ़ी निकल चुका था और हसनैन भी कमरे में नहीं था। वो उसकी नींद खराब किए बगैर कमरे से निकल चुका था। शादी को 1 माह गुजर गया था और उसने ससुराल और शोहर की तारीफों भरा खत माँ को भेज दिया। खैर, अभी वो फ्रेश होकर सलीके से सर पर दुपट्टा जमाए दादा दादी को सलाम करने के लिए उनके कमरे में जा रही थी कि अंदर से तेज तेज आती आवाज़ें सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। उसने अंदर जाकर मुदाखलत करना मुनासिब नहीं समझा और उनके खामोश होने का इंतज़ार करने लगी। हसनैन की किसी बात पर दादा दादी से बहस हो रही थी। वो कुछ गुस्से में भी लग रहा था। हम यहीं रहेंगे इसी घर के अंदर। मेरी शादी अगर आपने यही सोचकर की थी तो कम से कम आप लोगों को हमें तो बताना चाहिए था। अब मालूम हो गया ना, तो पुत्र तू से लेकर छोटी हवेली में शिफ्ट हो जा। हम मिरासियों का गंद इस घर में नहीं रख सकते। दादी ने तेज लहजे में कहा तो बाहर खड़ी सलमा के कदम डगमगा गए। वो मुंतज़िर ही रही कि अभी हसनैन कुछ कहकर उन्हें चुप करवा देगा, मगर वो खामोश खड़ा था। दादी कुछ और भी कह रही थी मगर सलमा का जहन तो लफ्ज़ मिरासी पर ही उलझा हुआ था। ठीक है, मैं कल ही छोटी हवेली में शिफ्ट हो जाऊंगा। वो मज़ीद वहाँ खड़ी नहीं रह सकी और बेजान कदमों से अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी थी। अगले रोज़ हसनैन ने अपना और उसका सामान उठवाकर छोटी हवेली में सेट करवा दिया था। सलमा खामोश तमाशाई बनी रही। वहाँ जाने के बाद हसनैन के सर से मोहब्बत और इश्क का भूत उतरने लगा था और वो अक्सर कहता, मैंने तुमसे शादी करके शायद कुछ गलत कर लिया है, तभी दादा दादी ने मुझे घर से ही निकाल दिया है। बाबा बाहर मुल्क में और भाई शहर में रह रहे। एक मैं उनके पास था मगर उन्होंने तुमसे शादी करने की वजह से मुझे अपनी ज़िंदगियों से दूर कर दिया। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मगर क्या करता, तुम मेरी मोहब्बत हो। सलमा को समझ नहीं आती थी कि उस इजहार पर हंसे या रोए, बस खामोशी रह जाती। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। हसनैन का ज़्यादातर वक्त बड़ी हवेली में गुजरता। सलमा पूरा पूरा दिन उसके इंतज़ार में गुजार देती। वो बड़ी हवेली जाकर जैसे ही वापसी का रास्ता भूल जाया करता। वो शादी के बाद एक बार भी माँ से नहीं मिली थी। हसनैन से माँ से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने उसे इस अंदाज में देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शक कर रहा हो। फिर सख्ती से बोला था,
तुम उन तंग गलियों में दोबारा जाने का नहीं कहोगी। उस घर के ख्याल से भी दिल को पाक कर लो। मैं तुम्हें एक नई पहचान देना चाहता हूँ और तुम हो कि उस घर में जाने के लिए तड़प रही हो। बेवकूफ़ लड़की, मैंने कब कहा था कि मैं पलट कर नहीं जाऊंगी, या मैंने कब आपसे वादा किया था कि अपनी पहचान और खून से मकड़ कर जिंदा रहूंगी? बताइए। वो चीख पड़ी तो हसनैन ये कहकर चला गया, वहां जाने का नाम भी मत लो, समझी? दादा दादी को ये पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वहां जाकर ख्वार होकर इस खानदान की इज्जत को खराब करूं। ये कहकर वो वहां से चला गया और सलमा दुपट्टे में मुंह छुपाकर रोने लगी। माँ, तुम्हें किसने कहा था कि बड़े घरों और ऊंचे खानदान में बेटियां सुखी रहती हैं? माँ, ऊंचे घरों वाले लोगों के दिलों में छोटे घर वाली लड़की के लिए कोई जगह नहीं होती। उनकी नज़र में उसकी इज्जत एक कौड़ी की भी नहीं होती। झोपड़ी में भी कदर मिलती तो शायद ये दिल इस तरह से जख्मी ना होता। सलमा रोते हुए माँ को पुकार रही थी, मगर अफसोस उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। थक हार कर वो वहीं सो गई। उसकी आंख किसी के दरवाज़ा दड़दड़ाने से खुली थी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो ताई जुलेखा, गांव की वो वाहिद औरत जो अक्सर उससे मिलने के लिए आती थी, वो दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर दाखिल हुई तो कलाई से सलमा को पकड़कर अंदर खींचती चली आई। क्या हो गया ताई? सलमा को कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ। कयामत टूट पड़ी है, कयामत। चल चूड़ियां उतार, ये रंगीन कपड़े बदल जल्दी से, तेरा सुहाग उजड़ गया है, तू बेवा हो गई है। अल्फाज थे या बम, सलमा की जात जैसे कई टुकड़ों में तकसीम हो गई। ये क्या बकवास कर रही है? सलमा ने ताई जुलेखा को झिंझोर डाला। इतने में हवेली की एक मुलाजमा घर में दाखिल हुई और बोली, सलमा बीबी, आकर छोटे साहब का चेहरा देख ले। सलमा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ताई जुलेखा ने उसे संभाला और बताया कि सुबह बड़ी सड़क पर बहुत बड़े ट्रालर ने साहब की गाड़ी को कुचल दिया। उसी वक्त जान निकल गई। ज्यादा हालत खराब है, रखा नहीं जा सकता। सलमा सफेद चादर का घूंघट डाले बड़ी हवेली में पहुंची तो सीना को भी करती दादी ने चीख चीख कर उसे मनूस बदकरदार और न जाने क्या कुछ कहा। ऐसे मनूस कदम है, खा गई शोहर को। अक्सर औरतों की जुबान पर यह बात थी, मगर वो उन सब से बेखबर शोहर की जुदाई के गम में डूबी थी। अभी कल ही तो उसने माँ को खत लिखकर अपनी जिंदगी में उन खुशियों की दास्तान लिखी थी जिनका उसकी जिंदगी से कोई वास्ता था ही नहीं, और ये तो शायद वो कयामत थी जिसे वो छुपा भी नहीं सकती थी। हसनैन के स्वयं वाले दिन दादी ने उसे अपने पास बुलाकर बड़ी हकारत से कहा था, जिसकी खुशी के सदके तुझे यहाँ लाया गया था वो तो चला गया, बेहतर है कि तू भी अब वापस चली जा। ड्राइवर से मैंने कह दिया वो तुझे तेरी माँ के घर छोड़ देगा। मगर हसनैन का होने वाला बच्चा, सलमा ने डरते हुए कहा तो दादी तंज भरे अंदाज में हंसी और बोली, बच्चे की भी खूब कही, मिरासियों का भला क्या भरोसा, तुझसे कोई ताल्लुक नहीं, तो इस सोने वाले बच्चे से क्या वास्ता हमारा। जिस तरह खाली हाथ आई थी उसी तरह लौट जा। दादी ने उसे ड्राइवर के साथ वापस भेज दिया। उसकी शादी का किस्सा अपने अंजाम को पहुंच गया। तारा बेटी की यूं उजड़ी हालत देखकर बहुत परेशान हुई। सलमा बीमार रहने लगी थी और हर वक्त हसनैन को याद करके रोती। वहां आने के 6 माह बाद उसके घर बच्ची की पैदाइश हुई तो उसे देखकर सलमा को अपने जीने की वजह समझ आने लगी। वो नन्ही सी गुड़िया गोया उसके लिए जीने का एक पैगाम था जिसे उसने बड़ी मोहब्बत से कबूल कर लिया था। एक रोज वो उसे गोद में बिठाए उसके साथ खेल रही थी कि तारा एक मेहमान के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसने सर उठाकर सामने देखा तो अपने सामने शाहनवाज को पाकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। मुझे दुख है कि तुम्हें गांव में वो मुकाम नहीं मिला जिसकी हकदार थी। हुस्ना के बारे में मुझे कल ही मालूम हुआ, मैं चला आया। मैं अपने हसनैन की निशानी को गले लगाना चाहता हूँ। सलमा ने अपनी बेटी हुस्ना को उसके ताया की गोद में दिया। वो उसे गले लगाकर रो पड़ा। उसे उसमें से अपने भाई की खुशबू आती महसूस हो रही थी। जाते हुए शाहनवाज ने जेब से नीले नोटों की गड्डी निकालकर हुस्ना के पास रखी तो सलमा ने तड़प कर वो नोट उठाकर शाहनवाज के ही हाथ में थमा दिए। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, जिस जगह हमें अपना मुकाम न मिला वहाँ की भीख भला हमारे किस काम की।
सलमा की बात सुनकर शाहनवाज का दिल कट कर रह गया। वो नोट हाथ में पकड़े शिकस्त भरे अंदाज में वहां से निकला। तारा बीमार रहने लगी। जवान बेवा बेटी को देखकर उसका दिल खून के आंसू रोता। उन्हीं फिक्रात की वजह से वो बीमार रहने लगी। एक रोज उसे प्रोग्राम करना था, मगर बुखार था कि जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। सलमा ने माँ को दवा दी, बेटी को सुलाया और माँ की जगह जाने के लिए तैयार हो गई। उसने तैयार होकर एक नज़र आईने पर अपना हसीन चेहरा देखा तो वहाँ सोगवारियत और ज़माने का एक कड़वा सच आया था कि इंसान अपनी तकदीर अपने हाथों से बदल सकता है। दूसरों के आसरे पर वक्त ज़ाया करने वाले घूम फिर कर वापस उसी जगह आते हैं और सिवाय पछतावे कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो खुद से नजरें चुराती आंसू को पीछे धकेलती आगे बढ़ी। जो गाड़ी उसे लेने के लिए आई थी, उसे देखते ही उन लोगों के स्टैंडर्ड का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसने हाल में कदम रखा तो जो लोग उम्र रसीदा तारा के मुंतजिर थे, इतनी हसीन और दिलकश परी पैकर चेहरा देखकर नजरें चपकाना भूल गए। सलमा पुरअतमाद सी माइक के आगे आई और अपनी आवाज का जादू जगा रही थी। सामने बैठे लोगों की दिल की धड़कन थम गई। पहली बार उसकी आवाज ने जादू जगा दिया। आदाब। वो वापस जाने के लिए बैरूनी दरवाजे से निकली ही थी कि पीछे से खासी भारी मर्दाना आवाज सुनकर वो रुक गई। कल इस गली के 5वें मकान में एक सेशन हमारे लिए। उसने नोट सलमा के आगे बढ़ाए। उसने थाम कर हामी भर ली। रकम काफी ज्यादा थी और उसकी तवक्को से बढ़कर थी। सलमा कुछ कहना चाहती थी, मगर अगले ही पल वो शख्स इजाफी बात किए बगैर आगे बढ़ गया। सलमा को हैरत का शदीद झटका लगा। वो आदमी कुछ अजीब था, रूखा सूखा सा अंदाज और बेपनाह पुरकशिश चेहरा। किसी मर्द को इतना पुरकशिश उसने पहली बार देखा था। फिर वो ये सोचकर आगे बढ़ गई कि दुनिया तो है ही एक अजायब खाना। अगले रोज वो मतलूबा वक्त पर काम पर जाने के लिए तैयार थी। तारा ने बेटी को दुख से देखा तो सलमा माँ को देखकर मुस्कुरा दी। माँ, तेरी जगह अब मैं काम करूँगी। तेरे अब आराम के दिन है, सारी उम्र काम ही किया है। तारा ने आगे बढ़कर बेटी की पेशानी चूम ली और कहा, बस ये तारीखी अल्फाज कभी हुस्ना की जुबान पर ना आए। मैं तो माजी का कुछ भी नहीं बदल सकी। सालों पहले माँ को मैंने यही अल्फाज कहे थे जो आज तो मुझे वापस लौटा रही है। सलमा ने माँ के आंसू साफ किए और बोली, जिंदगी, बल्कि जिंदगियां बदलने के लिए भी तो हौसले चाहिए होते हैं जो इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। कभी कभी तो सदियां बीत जाती हैं। सलमा कहकर बैग उठाकर अलविदाई हाथ हिलाकर घर से निकली और पीछे तारा उसकी बात का मतलब खोजती साकत रह गई। हुस्ना के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो जैसे होश में आई और आगे बढ़ गई। वो उसी जगह पहुंची जहां उसे बुलाया गया था। ये खासा वीरान सा इलाका था। वो थोड़ी खौफजदा से आगे बढ़ रही थी। उसके सुनहरी बाल हवा में उड़कर उसे मजीद खूबसूरत बना रहे थे। जामनी और सुर्ख रंग के कंट्रास्ट में उसका हुस्न मजीद निखर गया था। वो 5वें घर के सामने रुकी तो वो इतना हसीन सजा हुआ था कि सलमा ने उतना हसीन घर अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। उसे बहुत खुशगवार एहसास हुआ और वो अंदर कदम बढ़ा गई। अंदर खूब अंधेरा था। जो रोशनियां बाहर दिखाई दी थी वो तो कहीं गायब हो गई थी। वो डर के मारे रोने वाली हो गई। कोई है? उसने हिम्मत की और जोर से चिल्लाई तो पूरा हाल जगमगा उठा, साथ ही तालियों से गूंजने लगा। उसने हैरान होकर इधर उधर देखा तो पूरे हाल में जिन्नात को मौजूद पाया। वो सब तालियां बजा रहे थे। ये उनके इस्तकबाल का अनोखा अंदाज था जिसने सलमा की जानें निकाल दी। आगे का सब इतना हसीन था कि सलमा ने इतना पुल्लुत्फ होकर गाना गाने का सोचा भी नहीं था। वो जैसे नशे में थी। आंखें बंद किए वो गा रही थी। अपने अल्फाज में डूब कर गाती वो ऐसा महसूस कर रही थी गोया वो हवाओं में महवे रक्स हो। उसके चेहरे पर बहुत दिलफरेब मुस्कुराहट फैल गई जो उसके हुस्न को 4 चांद लगा रही थी। सामने बैठे जिन्नात उसकी आवाज़ के जादू में खोए थे। रात गए तक महफिल सजी रही। बहुत देर बाद किसी ने उसका हाथ थाम लिया और उसे चलता हुआ लेकर एक निहायत कीमती गाड़ी तक ले आया। वो अब तक उसी ख्वाब किसी हालत में थी। जहन कुछ सोचने की हालत में था और ना ही पूछने की। सब कुछ गैर इरादी तौर पर हो रहा था। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई तो उसी बेहद पुरकशिश शख्स ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और गाड़ी हवाओं से बातें करने लगी। क्या महसूस हुआ? उसी खामोशी को उस पुरकशिश जिन ने तोड़ा। सलमा मुस्कुराकर बोली, मैं कल फिर आऊंगी।
عام حالات میں تو شاید وہ کبھی ایسے نہ بولتی، مگر اس وقت خود پر سے اختیار کھو بیٹھی۔ ضرور، ہم انتظار کریں گے، جن نے بھاری آواز میں کہا اور مسکرا دیا۔ صبح اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلی۔ تارا حسنہ کو سنبھال رہی تھی اور اس نے سلمیٰ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ بہت دیر کر دی تھی تم نے رات کو؟ تارا نے عام سے انداز میں پوچھا تو سارا واقعہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں اماں، دیر ہو گئی تھی مگر آج بھی جانا ہے، وہ خوش ہو کر بولی تو تارا نے اس کے خوش ہونے پر زیادہ غور نہیں کیا۔ ناشتہ رکھ دیا ہے، کر لینا، وہ کہہ کر نواسی کے لیے فیڈر بنانے چل دی۔ رات کو سلمیٰ نے اپنی تیاری میں خاصا وقت لگا دیا۔ وہ آئینے کے سامنے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تنگ آ کر تارا کو ٹوکنا پڑا۔ جلدی کر لے سلمیٰ، گاڑی کب سے آئی کھڑی ہے۔ وہ جلدی سے پرس اٹھا کر چل دی۔ آج کی رات بھی پچھلی رات کی طرح بہت حسین تھی۔ سلمیٰ نے اپنی آواز کے جادو سے جنات کی محفل میں سکوت پیدا کر دیا۔ رات گئے اسی خوبصورت جن نے اسے بھاری رقم تھما کر گھر چھوڑ دیا۔ دن اسی طرح سے گزرنے لگے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سلمیٰ کا تعلق ان مہربان جنات کے ساتھ مزید گہرا ہوتا گیا۔ حسنہ 4 سال کی ہوئی تو اس نے اسے ایک اچھے سے اسکول میں داخل کروا دیا۔ ایک روز وہ معمول کے مطابق بہت دیر سے بیدار ہوئی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ تارا نے دروازہ کھولا تو سامنے حسنین کے دادا دادی اور ایک شخص کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں اپنی پوتی سے ملنے آیا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے، جو حسنین سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا، شرمندہ ہو کر کہا تو تارا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اندر آنے کا راستہ دیا، یہ سوچ کر کہ چاہے جیسے بھی لوگ ہیں مگر اس کی نواسی سے خون کا رشتہ بھی رکھتے ہیں۔ حسنین کے والد جو بیرون ملک سے پاکستان آ گئے تھے، حسنہ کو گلے لگا کر زاروں قطار روتے رہے۔ انہیں دیکھ کر باقی سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں بیٹا، میں اور میرے ماں باپ تم سے ماضی کے ہر برے رویے کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو اور ہمارے ساتھ چلو، ہم حسنین کی نشانی کو ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ حسنین کے والد نے آنسوؤں کے درمیان میں کہا تو سلمیٰ نے کہا، آپ شاید بھول گئے کہ آپ ایک میراسن اور اس کی بیٹی کو گھر لے جانے کی بات کر رہے ہیں، جسے بے عزت کر کے اس گھر سے نکالا گیا تھا۔ تم ہمیں معاف نہیں کرو گی؟ دادا نے سر جھکا کر کہا تو سلمیٰ بولی، میں اس گھر سے کوئی بغض دل میں لے کر نہیں نکلی تھی بابا، بس وہاں واپس نہیں جا سکتی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ دادی نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو سلمیٰ نے مضبوط لہجے میں کہا، جی بالکل، یہ میں اپنا فیصلہ بالکل نہیں بدلوں گی۔ وہ تینوں حسنہ کو تحائف دے کر اور بہت سارا پیار دے کر مایوس واپس چلے گئے۔ سلمیٰ نے اپنا دل پتھر کا کر لیا تھا، اسے ان پر ذرا رحم نہیں آیا، جس طرح کچھ سالوں پہلے اس پر رحم نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ وقت مزید اسی طرح سے گزر گیا۔ سلمیٰ روز ہی جنات کی محفل میں آواز کا جادو جگاتی اور اس کے بدلے بھاری قیمت وصول کرتی۔ ایک روز رات گئے تک کام کرنے کے بعد شہریار اپنی گاڑی میں اپنے آفس سے نکل کر واپس گھر جا رہا تھا، جب اس نے سخت سردی اور ٹھنڈی ہواؤں میں ایک عورت کو سڑک کے پار دوسری طرف لہراتے ہوئے گانا گاتے ہوئے سنا۔ وہ یہی سمجھا کہ یہ کوئی پاگل اپنے گھر سے بھٹکی ہوئی عورت ہے۔ پہلے تو وہ اسے نظر انداز کر کے وہاں سے گزرنا چاہتا تھا، مگر اس کے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک انسان کو اس طرح سے ٹھنڈ اور اندھیرے میں چھوڑ کر وہاں سے گزرے۔ اسے اس عورت کو سمجھانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ گاڑی سے اترا اور چاند کی روشنی میں جیسے ہی اسے قریب پہنچا، اسے دیکھ کر شدید حیرت ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں تھی، سلمیٰ تھی، اور اس وقت باریک کپڑوں میں نہ تو ٹھنڈ اس پر کوئی اثر دکھا رہی تھی اور نہ ہی اندھیرے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سلمیٰ، تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ کیا حسنین کی موت نے تمہیں پاگل کر دیا ہے جو رات کی اس پہر اندھیرے میں ادھر چلی آئی ہو؟ تمہاری آواز ہوا کے دوش پر دور تک کا سفر کر رہی تھی۔ تمہاری آواز پر کوئی جن عاشق ہو گیا تو شاید حسنہ اپنی ماں کو کھو دے۔ سلمیٰ ہوش میں آ گئی، اب حیران اور شرمندہ کھڑی اس خالی اور ویران جگہ اور اپنے سامنے شاہ نواز کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ نواز نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھے پر ڈالا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک لے آیا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے اسے اس کے گھر کے سامنے اس ہدایت کے ساتھ اتار دیا کہ آئندہ وہ ایسی کوئی بے وقوفی نہ کرے، اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اگلے روز دن چڑھے تک وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
तारा ने 2 बार कमरे में झांक कर देखा मगर वो बेखबर सोई थी। तीसरी बार तंग आकर उसने उसे जगा ही दिया। उसकी पेशानी छुई तो वो बुखार में जल रही थी। तारा परेशान हो गई, उसके सर पर पट्टियां रखने लगी मगर बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार तारा ने शाहनवाज की मदद से शहर के जाने माने पीर साहब से राब्ता किया तो उन पर इंकशाफ हुआ कि सलमा पर जिन्नात आशिक है और वो बहुत जल्द उसे साथ लेकर जाना चाहते हैं। बर वक्त इलाज न हुआ तो सलमा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा सकती है। तारा तो ये सुनकर दिल थाम कर रह गई। पीर साहब की दी हिदायत के मुताबिक उसका ख्याल रखने लगी। शाहनवाज भी बाकायदगी से उनके घर चक्कर लगाता और सलमा का हाल अहवाल मालूम करता। उसका पूरा इलाज खैरियत से गुजर गया। आखिरी चंद दिन रह गए और तारा के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। शाहनवाज ने उनके लिए मुलाजमा का बंदोबस्त भी किया जो तारा की काम करवाने में मदद करती। आखिरी तावीज़ उसे चांद की 14वीं रात को देना था। सलमा दिन से दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगाकर कमरे में बंद थी। तारा ने कई बार दरवाज़ा बजाया मगर उसने नहीं खोला। उसने कई बहाने भी बनाए मगर वो ढीठ बनी कमरे में बंद रही। तारा की सांस अटकी थी। ये रात गुजर जाती तो शायद उसका इलाज कभी पूरा नहीं होता। तारा परेशान सी इधर उधर टहल रही थी मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरवाज़ा खोल सलमा, ना परेशान कर मुझे। तारा चिल्लाई तो सलमा खिड़की से झांक कर बोली, माँ हसनैन बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है। वो दोनों हाथों से मजबूती से खिड़की की जाली पकड़कर रोने लगी। तारा दूर खड़ी बेटी को अफसोस से देख रही थी कि न जाने सलमा के दिल में क्या है कि वो जोर से कहका लगाकर हंसने लगी। वो आंखें बंद किए मुंह खोले जोर से हंस रही थी। तारा के जहन में तरकीब आई। उसने तावीज़ का पानी खिड़की के बाहर से उसके मुंह के ऊपर फेंका तो सलमा ने जैसे ही मुंह बंद किया पानी का कुछ हिस्सा उसके अंदर चला गया। मुझे मार दिया माँ। सलमा के मुंह से ये अल्फाज निकले और अगले ही पल वो किसी बेजान मूरत की तरह लहरा कर पीछे गिर पड़ी। पीर साहब ने उस रात सलमा को खुले आसमान के नीचे लाने से मना किया था। सो तारा ने दुखी दिल से दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगाकर बंद किया और खुद दूसरे कमरे में हुस्ना के साथ आकर लेट गई। वो पूरी रात उसके लिए कयामत की रात थी। उसके बूढ़े जुरियों भरे चेहरे पर सालों की थकन थी और आंसू एक अज़ियत भरी दास्तान लिख रहे थे। उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि उसने सलमा के साथ आज सब कुछ खो दिया। जिस बेटी के लिए जी रही थी उसे जुदाई का ख्याल ही उसकी जान निकाल रहा था। उसने दुख से सामने लेटी हुस्ना को देखा जो मासूम अपनी यतीमी से तो बेखबर थी ही, अब शायद माँ से भी महरूम होने वाली थी। दिन भर की थकी हारी तारा दुपट्टे में मुंह छुपाकर रोती हुई न जाने कब नींद की वादी में उतर गई। सुबह उसकी आंख ठक ठक की आवाज़ से खुली। वो हड़बड़ाकर उठी और कमरे से बाहर निकली। वो उस वक्त बेटी को देखना चाहती थी। सलमा कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। अम्मा, दरवाजे की कुंडी क्यों लगाई है? हद करती हैं आप। आज हुस्ना के स्कूल में मीटिंग में जाना था मुझे, वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कह रही थी। तारा पहले तो हैरान हुई फिर खुश हो गई। चली जाना, पहले नाश्ता तो कर लो। तारा बोली तो सलमा बड़े रूठे अंदाज में बोली, नाश्ता ही करूंगी, मीटिंग का वक्त वैसे भी गुजर गया है। फिर उसे कुछ याद आया तो बोली, रात मेरा बिस्तर भी ठीक नहीं किया तुमने, इतनी बेआरामी से उठी हूँ, सर भारी हो रहा है। ओहो, आज ज़रूर नरम वाला गद्दा पेटी से निकाल कर तेरे बिस्तर पर लगा दूंगी, तो अभी नाश्ता करके गोली खा और सो जा। तारा ने प्यार से कहा तो सलमा ने ताबेदार बच्चों की तरह सर हिलाया, फिर नाश्ता करने लगी। सलमा उस रात के बाद भूल ही गई थी कि जिन्नात से भी उसका इतना गहरा ताल्लुक रह चुका है। वो उदास और खोई रहती। एक रोज़ तारा खाना बना रही थी जब सलमा उसके पास आई और बोली, अम्मा हम दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तारा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और बोली, मैंने भाई शाहनवाज से कह रखा था कि कोई घर हमारे लिए देख ले। कल तुम हुस्ना को स्कूल लेकर गई हुई थी तो वो आकर बोल गए थे कि उन्हें हमारे लिए नया घर मिल गया। सलमा ने माँ को तफसील से बताया तो वो बोली, इसकी क्या ज़रूरत है सलमा? माँ, नए घर में नई ज़िंदगी शुरू करेंगे जिसमें कम से कम मिरासन वाली हमारी पहचान हुस्ना की ज़िंदगी में शामिल नहीं होगी। ठीक कहती है। तारा बेटी के फैसले पर राज़ी थी। फिर सलमा ने नए घर में एक नई पहचान के साथ कदम रखा। उसे ये पहचान छिन जाने का डर नहीं था क्योंकि उसने किसी और से कोई उम्मीद लगाए बगैर खुदा के बाद अपनी ज़ात पर अनहसार किया था। एक छोटी सी मिठाई की दुकान जो उसने अपने हाथ से बनी मिठाई से शुरू की थी,
خلوص نیت اور محنت شامل ہوئی تو ترقی کرتے ہوئے شہر کا سب سے بڑا سویٹ سٹور بن گیا، جہاں معیار اور لذت سے متاثر ہو کر دور دراز سے لوگ خریداری کے لیے آتے۔ وقت اپنا سفر طے کرتا رہا۔ حسنہ اسکول سے کالج اور کالج سے وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل چلی گئی۔ تارا گھر کی دیکھ بھال کرتی، سلمہ اپنے ڈھیر سارے ملازمین کے ساتھ کاروبار سنبھالتی۔ حسنین کی موت کے بعد ہی صحیح، مگر شاہنواز نے ہمیشہ اس کا ساتھ ایک سگے بھائی کی طرح دیا، ہر موڑ پر اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ آج ان کی کوٹھی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ سلمہ ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ تارا کے تو کام ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ مہمانوں کے آنے سے پہلے وہ ہر کام سے فارغ ہو کر بیٹھ جانا چاہتی تھی، مگر حسنہ کے کمرے کی سجاوٹ سلمہ کی ہدایت تھی کہ ملازموں کے سر پر کھڑے ہو کر کروائی جائے، کہیں کسی قسم میں کام میں کوئی ڈنڈی نہ مارے۔ اس کے کمرے میں فانوس سے لے کر نرم مخملی کارپیٹ تک سب نیا تھا۔ جس وقت حسنہ کی گاڑی علاقے میں داخل ہوئی، سلمہ پھولوں کے ہار اور ملازمہ پھولوں کی تازہ پتیاں لے کر دروازے میں کھڑی تھی۔ یہ استقبال حسنہ کے وکیل بن کر پہلی بار گھر آنے کی خوشی میں تھا۔ دیکھنے والی ہر نظر اس کی خوش قسمتی پر رشک کر رہی تھی، کیونکہ دنیا میں کامیاب لوگ تو بہت ہوتے ہیں، مگر ہر ایک کو اپنی کامیابی کے ایسے قدردان نہیں ملتے۔ حسنہ کا پھولوں سے استقبال ہوا تو وہ ماں کی ایسی محبت پر اس کے گلے لگ کر رو دی۔ آج میں نے تجھے ایک نئی پہچان دے دی ہے حسنہ، میری زندگی کا اولین مقصد پورا ہو گیا۔ سلمہ نے بیٹی کو گلے لگا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کچھ دیر بعد حسنہ کے دادا، تایا اور تائی نے وہاں قدم رکھا تو سلمہ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور حسنہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگی، جن سے ملنے سے کبھی سلمہ نے اسے منع نہیں کیا تھا، اور وہ دور رہ کر بھی ہمیشہ اپنے خاندان کے قریب رہی۔ وہ لوگ سلمہ کی شان و شوکت اور اس کا خوبصورت جگمگ کرتا گھر دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ حسنین نے ایک جوہری کی مانند اس ہیرے کو سالوں سے پہلے جانچ لیا تھا، جسے پہچاننے میں انہیں کئی سال لگ گئے، اور سلمہ نے اپنی کارکردگی سے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ انسان دنیا میں آزاد ہے، وہ جو چاہے اپنی محنت کے بل پر سمیٹ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔